کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں شہزاد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کریم غفور الرحیم کے لیے ہیں، جو کل کائنات کا مالک و خالق ہے، جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے۔ اسی کی شان ہمیں تمام جہانوں میں دکھائی دیتی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی ہر چیز ہے، اور اس کے علاوہ تمام عالم میں جو ظاہر اور جو کچھ بھی غائب ہے، اس کی شان بے نیازی ہے کہ اپنے نافرمانوں پر بھی احسان عظیم فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ان گنت ہے۔ سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ باعث وجہ وجود کائنات پر۔ ناظرین کرام، حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی میں جن اصحاب قدسی نے درجہ کمال حاصل کیا، ان کو اہل اسلام اولیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے تبلیغ اسلام کے لیے اپنے شوق اور وطن کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کا مطمع نظر محض دین متین کی تبلیغ ہی تھا۔ دنیاوی لالچ، ہرس و غرور ان کے نزدیک کبھی نہیں آیا تھا۔ ان مقدس نفوس نے اپنے آبائی وطن کو محض تبلیغ دین کے لیے چھوڑا۔ پھر اللہ کریم کا فضل ان پر یوں ہوا کہ غیر وطن میں جہاں جہاں ان کا قیام ہوا، وہ مقام انہی کے نام سے منسوب ہو گیا۔ جیلان سے عبد القادر بغداد پہنچے تو بغداد کی پہچان بن گئے۔ حجور سے داتا سرکار لاہور پہنچے تو لاہور کی پہچان بن گئے، اور لوگوں کی زبان پر لاہور کا دوسرا نام داتا کی نگری آ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر پہنچے تو اجمیر کی پہچان بن گئے، اور اسی طرح بہت سے علاقوں کو ان مقدس نفوس کی بدولت شہرت حاصل ہوئی۔ انہی برگزیدہ بندوں میں سے ایک برگزیدہ بندہ جب اجودن پہنچا تو یہ علاقہ پاک پتن کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک ایسا علاقہ جس کا اس سے قبل کوئی ذکر ہی نہ کرتا تھا، وہی علاقہ اہل اسلام کے شیدائیوں کے لیے پاک پتن بن گیا، کیونکہ اس غیر معروف علاقے میں ایک ولی کامل سکونت پذیر ہو چکا تھا۔ ان کی خیر و برکت سے اس غیر معروف علاقے کو شہرت و دوام حاصل ہوئی۔ اس برگزیدہ بندے کا نام ہے حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عام طور پر بابا فرید گنج شکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اولیاء کرام نے دنیا میں رہتے ہوئے تبلیغ دین کا کام سر انجام دیا، اور دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے دنیا کو چھوڑا اور اپنے اعمال صالحہ سے غیر مسلموں کو دین اسلام کی طرف مائل کیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ غیر مسلموں نے اس نئے مذہب کو قبول کر کے دین کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اولیاء کرام کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین کامل تھا، اور ان کے یقین کامل نے سچ کر دکھایا کہ جو کام لاکھوں کا لشکر سر انجام نہیں دے سکتا تھا، وہ ایک ولی کامل نے کر دکھایا۔ یہ تھی قوت ایمانی کہ جس غیر مانوس جگہ پر ایک ولی کامل گمنامی میں پہنچا تو پھر اس کے بعد اس گمنام بزرگ کے دم قدم سے وہ علاقہ شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ تو دوستو، حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عوام و خاص بابا فرید گنج شکر کے نام سے یاد کرتے ہیں، بلا مبالغہ آپ ایک صاحب کشف و کرامت ولی کامل ہیں۔ خطہ پنجاب میں شمع ہدایت کی روشنی آپ کی بدولت تیزی سے پھیلی۔ آپ نے دین متین کی تبلیغ کو تمام زندگی اپنا شعار بنائے رکھا، اور اپنی زندگی میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ کیا۔ طلب علم کے سلسلے میں آپ نے حد درجہ سفر اختیار کیے، اور اولیاء اعظام کو ملنے کے لیے اکثر دور دراز کے علاقوں کا سفر اختیار کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ صوفیاء کے نہایت درخشندہ ستارے تھے۔ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کو اپنے پیشرو اولیاء اعظام ہی کی طرح اپنی زندگی کا واحد نصب العین سمجھ کر کیا۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی منشا نہ تھی۔ تمام زندگی آپ نے عملی طور پر اور زبانی اور تحریری طور پر صرف شریعت اور وحدانیت ہی کی تعلیم لوگوں کو عطا فرمائی۔ جیسا کہ فقراء کاملین کی ارشادات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کو تین باتوں سے پہچانو: ان کا بھروسہ مکمل طور پر خالق کائنات اور معبود حقیقی پر ہو، اور اسی پر توکل ہو۔ ان کی بے نیازی مخلوق کے ساتھ مکمل طور پر ہو۔ ان کی ہر سانس کی آمد و رفت میں اللہ تعالیٰ کی یاد شامل ہو۔ انہی خصوصیات کو ہم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے مطالعے میں دیکھتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ درج بالا تینوں خصوصیات صرف بابا فرید ہی کے لیے ہیں۔ آپ عاشق جمال حق، صاحب کشف و کرامت، سرور ارباب توحید اور اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ آپ کا شمار فقراء کاملین میں کیا جاتا ہے۔ اپنے دور کے آپ قطب الاقطاب اور قطب امیر تھے، جبکہ آپ کو شیخ کبیر فرید گنج شکر بھی کہا جاتا تھا، اور یہ کہنے والے جاہل اور عام عقیدت مند نہیں بلکہ اولیاء کرام، علماء کرام اور فضلاء تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 575 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ مائدہ حضرت کرسم خاتون اپنے وقت کی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ حضرت کرسم خاتون
के 3 साहिजादे और 1 साहिजादी पैदा हुई। साहिजादों के नाम फरीदुद्दीन मसूद, एजाजुद्दीन महमूद और नजीबुद्दीन मुतवक्कल है। आपकी साहिजादी का नाम हजरत हाजरा खातून था, मगर इनके ज़ुहद और तकवा की बिना पर इनको जमीला खातून कहकर पुकारा जाता था। आप हजरत साबिर कुलैरी की वालदा साहिबा थी। आपकी वालदा साहिबा बहुत इबादत गुजार खातून थी। घरेलू काम काज से फारिग होने के बाद इनका ज्यादातर वक्त इबादत इलाही में गुजरता था। आपकी वालदा मोहतरमा एक निहायत दीनदार खानवादे से ताल्लुक रखती थी। इनके वालिद माजिद निहायत मारूफ आलिम दीन थे, जिनका इस वक्त बहुत शोहरा था। इनके वालिद ग्रामी का नाम हजरत मौलाना वजीउद्दीन नजदी था। आपकी वालदा मोहतरमा की इबादत और रियाजत के मुतालिक मुख्तलिफ तज़किरे किताबों से हासिल होते हैं, जिनमें से एक ये है कि एक मरतबा सर्दियों की एक मुंजमद कर देने वाली रात की स्याही 4 सू फैली हुई थी और मखलूक गर्म कमरों में आराम कर रही थी, मगर मौसम सरमा की यकबस्त इस रात में अल्लाह की नेक बंदी अपने रब के हुजूर गिरिया कना थी। ये कोई मखसूस रात न थी, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि ये तो इनका रोजमर्रा का मामूल था। यकीनी बात यह है कि मुशाहिर की माएँ ऐसी ही हुआ करती हैं। ये तो नहीं हो सकता कि किसी वली कामिल की माँ दुनियादार हो, जैसा कि मशहूर बात है कि बहादुरों की माएँ भी बहादुर होती हैं। इसी तरह औलियाए कराम की माएँ भी वली होती हैं, क्योंकि खून और गोद का असर तो होता ही है। यही वजह है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर को बिला मुबालगा पैदाइशी वली कहा जाता है। तो दोस्तों, एक सर्द रात में हजरत कसम खातून इबादत इलाही में हमतन मशगूल थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की है कि आपके लबों पर यह दुआ थी कि ए खालिक़े कायनात, तू ही कायनात का मालिक भी है। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तेरी ये आजिज़ बंदी तुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और मुआफ़ी की ख्वास्तगार है। ए अल्लाह, तू गफूरुर रहीम है। मेरे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा, मेरी कोताहियों से दरगुजर फरमा। ये तेरी ही सिफ़ात है, तू मुआफ़ करने वाला है और दरगुजर करने वाला भी है। ए रब्बे करीम, तुझको तेरे अस्माउल हुस्ना का वास्ता मेरी कमजोरी, नातवानी और रुस्याई के पेश नजर कबल अज मौत मेरी बख्शिश फरमा, क्योंकि रोजे महशर जब मुझसे मेरे गुनाहों और मेरी कोताहियों की बाज़पुर्स होगी तो मेरे पास कोई जवाब और जवाब न होगा। दोस्तों, हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा जिस वक्त अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ फरमा रही थी, तो इस वक्त एक चोर अंधेरी रात का फायदा उठाने की घर से घर के अंदर चला आया। मगर इसको क्या पता था कि इस अंधेरी रात में जिस घर में वो दाखिल हुआ है, इस घर में तो दीन की शमा जल रही है। मेरे ख्याल में तो इस चोर की किस्मत ही जाग उठी थी कि वो इसके घर में चोरी की नीयत से चला आया था, मगर न इसको भी मालूम तो होगा ही कि दीनदारों के इस घर में आखिर इसको क्या मिलेगा। किस्मत जाग उठी कि एक नेक बख्त और नेक सीरत आबदा और जायदा खातून की दुआ और नजरे करम से इसको अपनी आकबत संवारने का क्या खूब मौका मुयसर आ गया। जिस वक्त वो चोर घर में दाखिल हुआ तो इसने घर में हर जानिब खामोशी का राज देखा, मगर घूमते घूमते जब वो हजरत कसम खातून के करीब पहुंचा तो इसकी बिनाई जाती रही। अब इसको अंदाजा हुआ कि वो किसी वली कामिल के घर में दाखिल हो चुका है। इसने इस मुश्किल वक्त में अपने आप से ऐद किया कि अगर मेरी बिनाई वापस आ गई तो मैं चोरी से तो हर हाल में तौबा कर लूंगा और दीन इस्लाम भी कबूल करके साफ सुथरी जिंदगी गुजारूंगा। इसकी आवाज से हजरत कसम खातून को अंदाजा हुआ कि ये अजनबी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है। इस चोर को हजरत कसम खातून ने तसल्ली और तशफ़ी दी और इसके हस्बे हाल इसके हक में बारगाह इलाही में दुआ फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपने करम के सदके मुआफ़ी अता फरमा दे। आपकी दुआ से इस चोर की बिनाई वापस आ गई। आपने इसको काफी नसीहतें करके वहाँ से रुखसत किया और एक मरतबा फिर अपने मामूलात में मशगूल हो गई कि जैसे कोई वाक़या वकूअ पजीर ही नहीं हुआ। यही अल्लाह के मुकर्रब बंदों की शान हुआ करती है कि इनको दुनियावी वाक़यात कभी हद दर्जा मुतासिर नहीं कर सकते। इनकी जिंदगियों का मकसद ही अपने रब को खुश करना होता है, इसलिए इनका हर फेल अपने रब की खुशनुदी के लिए होता है। न इनको कोई गम मुतासिर कर सकते और न ही इनको खुशियों में दीवाना देखा जाता है। खैर, जब सुबह हुई और हजरत कसम इबादत और रियाजत के बाद घरेलू काम काज में मसरूफ हो गई तो आपने सुना कि सवेरे सवेरे बाहर से लोगों के तेज तेज बोलने की आवाजें आना शुरू हुई। कुछ ही देर बाद रात वाला चोर चंद दीगर अफराद जिनमें इसके बीवी बच्चे भी शामिल थे अंदर आने की इजाजत मांगने लगा। आपने इन लोगों को घर के अंदर बुलवा लिया और दरियाफ्त फरमाया कि क्या वजह है।
आप लोग किस तरह आए हैं? इस ताइब चोर ने रोते रोते अर्ज किया कि जनाब आलिया, आपको भी अभी तक रात का वाकया भूला तो ना होगा। मैं रात वाला चोर हूँ जिसकी बिनाई आपकी दुआ की तासीर से लौट आई थी। आपने इन लोगों की खातिर खिदमत की और इनको नसीहतें फरमाई। वो ताइब चोर बोला कि ए पाक बीबी, हम लोग आए हैं कि आपका दीन इख्तियार कर ले। आपने इनको दीन की चंद बातें बताई और इन्हें किसी आलिम दीन से रुजू करने का हुक्म फरमाया। इस चोर का नाम रिवायत में अब्दुल्ला तजवीज किया गया है और इसने अपनी बाकी मानदा जिंदगी दीन मतीन के लिए वक्फ कर दी। हमने इसलिए पहले बयान किया है कि इस चोर की किस्मत ही जाग उठी थी कि वो इस घर में दाखिल हुआ, वरना वो सारी उम्र चोरियां ही करता रहता। इसकी दुनिया भी खराब रहती और इसकी आखिरत भी ना संवरती। इसके लिए तो वो अंधेरी रात उजालों का पैगाम लेकर आई। दोस्तों, आपकी वालिदा माजिदा मुल्तान के अजीमुल मर्तबत आलिम दीन हजरत मौलाना वजीउद्दीन की साहिबजादी थी। ये खानदान पूरे शहर में अपनी खुदा तरसी और इबादत और रियाजत में अपना एक मकाम रखता था। दोस्तों, हजरत बाबा फरीदगंज शकर का खानदानी पस मंजर कुछ यूँ है कि आपका ताल्लुक बराह रास्त सईदना उमर बिन खिताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। वही फारूक आजम जो कि आलम इस्लाम के एक दरख्शंदा बाप है। अहले इस्लाम के बुजुर्गों ने तो जनाब फारूक आजम के मुतल्लिक बहुत कुछ लिखा है और अगर देखा जाए तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं। हर मजहब और हर मकतबा फिक्र में यही कुछ होता है कि लोग अपने सरबरावरदा लोगों की तारीफ और तौसीह ही किया करते हैं, मगर जब गैर मजहब के दानिशवार किसी दूसरे मजहब के अजीम और रुतबा शख्स की तारीफ करते हैं तो देखा जाता है कि इसने तारीफ किस अंदाज में की है। सैयदना फारूक आजम की तारीफ और तौसीह यूं तो बहुत सी गैर मुस्लिम शख्सियात ने की है, मगर एक गैर मुस्लिम मुहक्किक माइकल एच हार्ट ने अपनी शोरे आफाक तस्नीफ दी 100 में आप पर कमाल दर्जा की तहकीकी बहस की है। साहिब मजमून में लिखते हैं कि उमर इब्ने खिताब दूसरे खलीफा राशिद थे और यकीनी तौर पर मुस्लिम खुलफा में अजीम तरीन खलीफा भी थे। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवान साथी और हमदम थे और इन्हीं की तरह वो भी मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपकी पैदाइश का साल मालूम न हो सका, मगर गालबन आपका सन्ने पैदाइश 586 ईस्वी है। मुल्तान में एक नामवर आलम दीन और साहिब इल्म व हिकमत मौलाना वजीउद्दीन भी रिहाइश पजीर थे, जिनका पूरे शहर में बड़ा नाम था। शहर भर के मुमताज उलमाए कराम से मौलाना वजीउद्दीन से ताल्लुकदारी थी। चुनाचे हजरत वजीउद्दीन ने अपनी बेटी हजरत कसम खातून का हाथ जनाब जमालुद्दीन सुलेमान के हाथ में देने का फैसला किया। जनाब जमालुद्दीन सुलेमान बड़े साहिब इल्म व फजल है। चुनाचे मौलाना वजीउद्दीन ने इनको अपनी दामादी में लेने का पुख्ता इरादा कर लिया। मौलाना वजीउद्दीन ने अपनी बेटी कसम बीबी का निकाह किसी और ने नहीं बल्कि शेख ने खुद पढ़ाया। दोस्तों, ये वही नेक खातून है जिन्होंने एक हिंदू डाकू को इस्लाम में दाखिल किया था। मौलाना वजीउद्दीन साहब इल्म नजर थे। इन्हें मालूम था कि मेरी बेटी नेक पाक और इबादत की बहुत पाबंद है। इस कराबतदारी की खबर पूरे मुल्तान शहर और इर्द गिर्द के शहरों के दीनदार हलकों में बड़ी खुशी से सुनी गई और दुआ की गई कि अल्लाह इस जोड़े पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। और इन्हीं दुआओं के तोफैल अल्लाह करीम गफूर रहीम ने हजरत जमालुद्दीन सुलेमान के घर हजरत फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। रिवायत है कि जब आप पैदा हुए तो चेहरा मुबारक आफताब की मानंद दमक रहा था। वालिदा मोहतरमा समझ गई कि एक वली कामिल आपकी गोद में अल्लाह पाक ने भेज दिया है। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई का इसमें ग्रामी हजरत शेख एजाजुद्दीन महमूद है और छोटे भाई का नाम हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल है। वही आपके खलीफा और मुरीद भी थे। आपकी हमशीरा साहिबा का नामे नामी इसमें ग्रामी हाजरा खातून था। आपका लकब अतर जमीला खातून था। आप बड़ी पाबंद सोमो सलात खातून थी और क्यों न होती कि दादा वालिद वालदा और भाई भी हामिलीन इल्म और फिर अल्लाह कबीर व अलीम ने आपको फरजंदे अर्जमन भी एक वली कामिल अता फरमाया। आपके फरजंदे मोहतरम का नाम हजरत अली अहमद साबिर कुलैरी है। आपने अलूम शरिया की तालीम हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। दोस्तों, हजरत शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर अभी तकरीबन 5 बरस के ही हुए थे कि आपके वालिद माजिद हजरत शेख जमालुद्दीन सुलेमान का इंतकाल पर मलाल हो गया। पूरे शहर में कोहराम मच गया कि एक साहिब इल्म माहिर अलूम शरिया एक बाज हस्ती का दुनिया से उठ जाना किसी साने से कम नहीं होता। इनकी नेक चलनी, रास्तबाजी और दीनदारी ही इनकी सबसे बड़ी करामत हुआ करती है। हजरत कसम खातून
खातून बेवा हो गई, दुनियावी तौर पर इन पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े होंगे। जैसा कि आम तौर पर देखा जाता है कि जो खातून बेवा हो गई तो इसको माली और मुआशरती तौर पर बेशुमार मसाइल और मसाइब का सामना करना पड़ता है, और किसी हद तक इस बात की तशवीश भी की जाती है कि इनके बच्चों का कौन कफील होगा। औरतें रोजाना हाजिर खिदमत होती और चाहती कि आपको दिलासा दें, मगर आप इन औरतों से फरमाती, मुझे कोई गम नहीं, मेरा और मेरे बच्चों का हामी और नासिर मेरा अल्लाह मौजूद है। बाज़ रिवायात में वारिद हुआ है कि आपकी पैदाइश खतवाल में हुई और वहीं आपने इब्तदाई तालीम भी हासिल की। इब्तदाई तालीम आपने ज्यादातर अपनी वालिदा मोहतरमा से ही हासिल की, क्योंकि आपकी वालिदा मोहतरमा खुद आलमा और फाजला थी। आपकी वालिदा मोहतरमा के वालिद गिरामी भी बहुत बुलंद पाया आलिम दीन थे। खतवाल में आपने अपनी इब्तदाई तालीम का ज्यादातर हिस्सा वालिदा मोहतरमा ही से हासिल किया, मगर आपकी वालिदा साहिबा ने आपको एक मदरसे में भी बिठा दिया ताकि आप बाकायदगी से अलूम शरिया की तामील करें। खतवाल में जिस मदरसे में आपने इल्म हासिल किया, वहाँ आपके उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद नजीर अहमद साहब थे। आपने कलामुल्लाह शरीफ इसी मदरसे में कारी मोहम्मद की जेर निगरानी हिफ्ज किया, जबकि दीगर अलूम में आपके उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद नजीर अहमद साहब थे। ये अपने जमाने के बहुत मारूफ आलिम दीन थे। उन्होंने बड़ी तवज्जो इन्हिमाक से बाबा सरकार की तरबियत की। जनाब बाबा सरकार सारी जिंदगी अपने उस्ताद मोहतरम का एहतराम से नाम लेते रहे। अभी उम्र मुबारक 12 बरस से ज्यादा न थी कि अहले खाना के साथ हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस जमाने में हज इस कदर आसान तो न हुआ करता था। हज के सफर के लिए बाकायदा काफिले तैयार हुआ करते थे और अक्सर औकात सफर में पैदल भी चलना पड़ता था और इस आमदोरफ्त में महीनों लग जाते थे। लाजमी बात है कि महीनों के सफर के लिए खर्चा भी तो होना लाजमी अमर था। दोस्तों, फकत 12 बरस की उम्र में हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर हज बैतुल्लाह शरीफ की शहादत हासिल करने के लिए जा रहे थे। काफिले की रवानगी की तैयारी जोरों शोर से जारी थी कि अचानक बाबा जी सरकार ने वालिदा मोहतरमा से पूछा, अम्मी जान, क्या नजीर शाह साहब भी हमारे साथ चल रहे हैं? जवाब मिला कि नहीं बेटा, इनका हमारे साथ जाने का तो इरादा नहीं है और वो नहीं जा रहे। आपने बड़े लाड और प्यार से अर्ज किया कि अम्मी जान, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी साथ चले। आपकी वालिदा मोहतरमा कुछ सोचने लगी। वजह ये थी कि जैसा कि हमने पहले अर्ज किया है कि इस जमाने में हजाज मुकद्दस का सफर बड़ा दुश्वार हुआ करता था, इसमें महीनों लग जाते थे, इसलिए इन महीनों के लिए खर्च भी साथ होना लाजिम था। यही बात सोचकर गालिबन हजरत कसम खातून खामोश हो गई कि अपना ज़ादिरा तो इकट्ठा कर लिया है, अब अपने बेटे के उस्ताद के ज़ादिरा का बंदोबस्त कैसे करूं। इसी असना में बाबा जी सरकार ने वालिदा मोहतरमा के ख्यालात को भापते हुए अर्ज किया कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझ पर अपनी वो दौलत निछावर की है जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होती। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम भी हज और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो। अल्लाह के फजलो करम से हम इनके अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। यूं नन्हे बच्चे फरीदुद्दीन मसूद ने, जिसे बड़ा होकर गंज शक्कर बनना था, अपने पहले सफर हज में अपने उस्ताद मोहतरम को फरामोश न किया और बड़े जोश और खुशी के साथ इस मुबारक सफर पर चले। जिन्होंने बड़े होकर अजीमुल मर्तबत शख्सियत बनना होता है, सच ये है कि इनका बचपन ही इनकी गवाही बन जाता है। औलियाए अज़्ज़ाम की शान विलायत इनके बचपन ही से नजर आ जाती है। इनकी अजमत अचानक नाजिल नहीं होती, बल्कि अवाइल उम्र से ही इनकी तरबियत बहुक्म इलाही दुरुस्त तरीके से हुआ करती है, क्योंकि इनको जवान होकर दीन की तबलीग करना होती है। हज बैतुल्लाह शरीफ की शहादत हासिल करके आप मुल्तान आ गए और आपकी वालिदा मोहतरमा ने बाद अज़ तहकीक आपको मजीद तालीम के लिए मुल्तान में हजरत मौलाना मिनहाजुद्दीन के मदरसे में भेज दिया। आपने यहाँ पर दीनी तालीम को पूरे जोश और जज्बे से हासिल किया। हालांकि आप इस वक्त कम उम्र थे, सन यही कोई 13 या 14 होगा, मगर बावजूद ये कि जमाना लड़कपन का था, मगर आदत कोई बच्चों और नौजवानों वाली न थी। हम वक्त मुताला में मसरूफ, ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद और मदरसा में गुजारते थे। नमाजी हजरात इस कम से नौजवान को देखते और हैरान होते कि चेहरे से तो बच्चा मालूम होता है, मगर जब देखो इबादत या मुताले में मसरूफ होता है। न लड़कों के साथ खेलता है, न हंसता है और न ही किसी से फालतू बातचीत करता है। आपस में लोग सरगोशियां करते रहते थे कि मालूम नहीं इसको इस कदर शौक क्यों है। हालांकि अभी ये बच्चा है, मगर इसका ज़ौक़ शौक वहाँ सिवाय दीनी किताबों के मुताले या इबादत के अलावा किसी और जानिब नहीं है। मगर इन सब बातों की जनाब बाबा फरीद को कोई परवाह नहीं थी। इनका दिल तो बस इबादत इलाही और मुताले के अलावा किसी और जानिब राग़िब भी नहीं होता था। एक रोज हस्बे मामूल आप मुताले में मसरूफ थे कि यकायक आपको एक निहायत लतीफ खुशबू की महक आई। ये एक ऐसी महक थी कि ना तो आपने पहले कभी सुनी और ना ख्याल किया। आपने किताबों को हाथों में मजबूती से थामते हुए यहाँ वहाँ पर निगाह दौड़ाई
اڑائی کہ یا الہی یہ عجیب خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ نما خوبصورت بزرگ مسجد میں داخل ہو کر وضو خانے کی جانب آہستہ روئی سے قدم اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے جو اس بزرگ عالی شان کو دیکھا تو پھر کسی اور طرف دیکھنا ہی بھول گئے۔ آپ لگاتار انہی بزرگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اطمینان سے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جتنی دیر وہ بزرگ وضو اور نماز میں مصروف رہے، آپ کی نگاہیں بس انہی پر مرکوز رہی۔ کتاب کو بند کر کے ہاتھوں میں تھام کر آپ فقط اس نورانی بزرگ کا ہی مطالعہ کر رہے تھے۔ ایک صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ یہ تو حضرت معین الدین چشتی کے خلیفہ اکبر جناب شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی سیدھے آپ کی طرف چلے آئے۔ آپ حضرت شیخ کے احترام میں جلدی سے کھڑے ہو گئے، مگر نگاہیں بدستور فرش پر مرکوز تھی۔ حضرت شیخ بختیار کاکی کو بذریعہ الہام حضرت بابا فرید کی